So today we'll talk about the regulation of respiration. It has two components, neural and the chemical regulation. Okay. So I will talk about the chemical regulation. In the second lecture, you will be taught about the neural regulation of the respiration. So in chemical regulation, एक मिनट. सो दी केमिकल रेगुलेशन. अब इसमें हमने देखना है कि इसमें जो भी हाउ इट वुड बी रेगुलेटेड. अब रिसेप्टर्स की टाइप तुम लोग आगे भी पढ़ोगे और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ टाइम. ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, बैरो रिसेप्टर्स के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो. सो कीमो रिसेप्टर्स. ठीक है, तो इन केमिकल कंट्रोल वी विल टॉक अबाउट द कीमो रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम एंड द peripherally as well as the centrally. So the chemoreceptors, chemo means chemical receptors. You already know receptor is a protein structure that will detect changes in the external environment or in its surrounding environment. तो अब हमारे पास जो chemicals हैं, that would be the partial pressure of oxygen. That would be the partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen and the pH, or in other words we can say concentration of hydrogen ion. ठीक है, concentration of the hydrogen ion. So the chemicals we are talking about here are the partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen and the pH. ठीक है, simple words में chemicals हमारे पास कौन से हैं? Carbon dioxide है, oxygen है और the hydrogen ion concentration है. Whatever changes will happen into these chemicals, they will stimulate our chemoreceptors. ठीक है, chemical receptors जो कि detect करेंगे changes in the chemical. Now they are divided into two types. One is central and another is peripheral. ठीक है, तो central chemoreceptors, they are located near the ventrolateral surface of the medulla oblongata. ठीक है, अच्छा, medulla oblongata pons में when you will be learning about the neural control, वहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स भी होते हैं. ठीक है, जो कि यहाँ पे शो किए हुए हैं. You will be these will be discussed later on. ठीक है, तो central chemoreceptor, along with these neurons we have another set of receptors, that is those are known as chemoreceptors. So the central chemoreceptors, they are located in the near the ventral surface of the medulla oblongata. Okay. And the another type of the chemoreceptors that is responsible for the chemical control of respiration is the peripheral chemoreceptors. They are located in the periphery, means away from the brain. They would be located somewhere in the peripheral organs. ठीक है, इनको हम carotid and the aortic bodies we call them. ठीक है, they control the breathing indirectly. सेंट्रल जो है वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहा है, पेरिफेरल जो है वो उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है. Now this picture is showing the location of the peripheral chemoreceptors. ठीक है, अब जो you have known about the carotid sinus and the aortic arch. ठीक है, carotid sinus and aortic arch जो हैं हमारे पास थे यहाँ पे. एक मिनट, सॉरी. Sorry for disturbance. Actually, this has got stuck. Okay. अब यहाँ पे जो है कैरोटिड साइनस है एक और एओर्टिक आर्च है. इनका क्या रोल है? एनीवन? You have been taught about them. एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस, इनका क्या रोल है और कहाँ पढ़े हैं तुम लोगों ने?
चलो जी, एज एक्सपेक्टेड के खामोशी ही मिलनी थी इस पे मुझे, इस जवाब पे। अब कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च तुम लोगों ने पढ़े थे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च, दीज आर नोन एज द baroreceptors. These are the baroreceptors. Now we are talking about the chemoreceptors. So along with them, we are near to these baroreceptors, we have chemoreceptors, जिनको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज। ठीक है, दीज आर दी कीमोरिसेप्टर्स। ये हमारे पास क्या है, कीमोरिसेप्टर्स। दे आर लोकेटेड नियर टू बैरोरिसेप्टर्स। मतलब कैरोटिड बॉडीज, दे आर लोकेटेड इन द बाइफिकेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये डायलेटेड पोर्शंस जो है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल बॉडीज आर प्रेजेंट ओवर हियर, दीज आर द कैरोटिड बॉडीज। below that we have the carotid sinus, that is the baroreceptors. अब खामखा मैं तुम लोगों से पूछ के मैं खुद को शर्मिंदा करूं, तो कैरोटिड साइनस और एओर्टिक साइनस बैरोरिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो अब कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज, दे आर कीमोरिसेप्टर्स। एओर्टिक बॉडीज, दे आर प्रेजेंट एट द आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, आर्क ऑफ एओर्टा पे प्रेजेंट है। They would be responsible for the detecting changes in the chemical, especially partial pressure of oxygen. तो ये हमारे पास हैं peripheral and chemoreceptors. Now come to the central chemoreceptors, how they are responding or controlling the changes in the respiratory rate. तो अब हमारे पास जो है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन दी वेंट्रोमीडियल lateral surface of the medulla oblongata. They are more sensitive to changes in the arterial partial pressure of carbon dioxide than that of the partial pressure of oxygen. ठीक है, and or in other words say they are more sensitive to hydrogen ion. ठीक है, carbon dioxide generated हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड हाइड्रोजन आयन के लिए ये बहुत ज्यादा इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, चेंजेस को, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब हमारे पास मसला ये होता है कि हाइड्रोजन आयन जो कि आर्टेरियल ब्लड में है, इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, देन हाउ विल गेट द हाइड्रोजन आयन इन द ब्रेन और इन द CSF in the form of carbon dioxide, because carbon dioxide, as you know, this is the lipid soluble gas, so it can easily cross the blood brain barrier. ठीक है, this barrier is a protection for the brain that won't allow each and everything to enter into the brain. It will allow selective substances to enter in the brain. ठीक है, तो इस वजह से जो है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि हमारी पेरिफेरी में जनरेट हो रहे हैं, बट द कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड इन द CSF वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये रिएक्शन तुम लोगों ने बहुत दफा देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि बिकॉज ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज दैट वुड बी ओनली प्रेजेंट इन द CSF एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो this would catalyze this reaction between the carbon dioxide and the water. It will form carbonic anhydrase. This will further dissociate into hydrogen ion and bicarbonate ion. ठीक है, hydrogen ion and bicarbonate ion में ये further dissociate होता है. Now this hydrogen ion that we have got from the carbon dioxide, it will stimulate the central chemoreceptors. ठीक है, तो low pH और the hydrogen ion concentration, increased hydrogen ion concentration will stimulate the central chemoreceptors. ये हम जो बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, वी से कि हाइड्रोजन आयन इन द आर्टेरियल ब्लड कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, while the carbon dioxide that is reaching to the CSF, it will dissociate and give us hydrogen ion, and this will be the powerful stimulator of the central chemoreceptors. ठीक है, ऑक्सीजन इसको क्यों नहीं इतना पावरफुल स्टिमुलेटर है, उस पर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जब पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स को और सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स को हम कंपेयर करेंगे, तो रिमेंबर दिस कि सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स का जो मेन स्टिमुलेटर है दैट वुड बी दी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड हाइड्रोजन आयन। बट इन केस इफ यू आर गेटिंग द ऑप्शंस इन एनी क्वेश्चन, ठीक है, अगर वहां पे सिर्फ ये ऑप्शन हो कि आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन वहां पे ना दिया हो, तो देन यू विल गो फॉर दिस ऑप्शन। इफ बोथ द ऑप्शंस आर गिवन,
कि partial pressure of carbon dioxide plus hydrogen ion, then you have to go for the hydrogen ion. ठीक है, तो first priority should be given to the carbon dioxide generated hydrogen ion that are the powerful stimulator of the respiratory center in the medulla oblongata. Now the peripheral chemoreceptors, ठीक है, अब we have already discussed their locations, ठीक है, कि हमारे पास carotid bodies और aortic bodies जो हैं, यहाँ पे जो है carotid body in the bifurcation of the common carotid artery में ये present है, ठीक है, aortic bodies are present over here arch of aorta पे. They detect changes in the chemicals जो कि हमारे पास carbon dioxide, oxygen और hydrogen ion concentration है, और in other words we say pH. They are not stimulated directly by the changes in the arterial partial pressure of carbon dioxide. ठीक है, मतलब कि जैसे कि central chemoreceptors के लिए partial pressure of carbon dioxide was the most potent or most important powerful stimulator, but here in case of peripheral chemoreceptors, partial pressure of carbon dioxide oxygen is the main stimulator, but उसके लिए भी हमारे पास एक range है कि at what partial pressure they would be stimulated. ठीक है, they are also stimulated by the rise in the hydrogen ion of the arterial blood. ठीक है, they can stimulate the peripheral chemoreceptors, but इनका रोल फिर ज्यादा जो है acid base balance में ज्यादा आता है. ठीक है, अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इसमें हमने लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. उसके दो पोर्शंस थे, एक स्टीप पोर्शन था, दूसरा प्लेटो फेज था. प्लेटो पोर्शन या स्टीप पोर्शन. Now, who will tell me the significance of plateau and the steep portion of the hemoglobin dissociation curve? Anyone? मैम प्लेटो फेज जो है वो बेसिकली एक मार्जिन देता है फॉर द जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसके लिए. मतलब कि और स्टीप पोर्शन का क्या है रोल? स्टीप पोर्शन जो होता है मैम वो स्टीप पोर्शन मैम थोड़ा याद नहीं मैम. इसमें वो सैचुरेशन है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात कर रहा है. अच्छा ठहरो एक मिनट, हाँ मनोज को बोलने दो राहुल, फिर आपसे पूछती हूँ. हाँ जी मनोज आप बोलें. दोनों ही गायब हो गए, राहुल और मनोज. मैंने कहा राहुल और मनोज दो. आपने कहा मनोज से. हाँ वो गायब हो गया ना, अब राहुल को बोलने दो. मनोज तुम पहले भागे, अब राहुल को आने दो. चलो राहुल एक्सप्लेन. मैम ये स्टीप फेस है ना, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात कर रहा है कि स्लोली हो रहा है, और प्लेटो फेस पे तकरीबन 99% हो जाता है सैचुरेशन ऑक्सीजन. और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो. चलो मनोज अब यू ट्राई दैट, वरना फिर मुबीना में बताएगा. इसमें सैचुरेशन है ना, हेमोग्लोबिन में ड्रास्टिकली अफेक्ट नहीं होती. मतलब इसमें अनलोड इतना जल्दी नहीं होता ऑक्सीजन, इसमें सैचुरेशन कांस्टेंट रहती है. बाकी स्टेप पोर्शन में जो है ना अनलोड ज्यादा होता है ऑक्सीजन. ठीक है, अनलोडिंग. और चलो मुबीन तुम भी ट्राई करो. ठीक है, थैंक यू राहुल एंड मनोज. जी मनोज. हाँ जी स्टीप पोर्शन मुबीन बताओ. स्टीप पोर्शन में डीसैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ज्यादा होती है और मोर देखो ऑक्सीजन सप्लाई होता है टिश्यू की तरफ. ठीक है, और प्लेटो पोर्शन में क्या हो रहा है? उसमें मैम वो सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. ठीक है, वो सेफ्टी मार्जिन एक्सप्लेन करो. वो क्या है सेफ्टी मार्जिन जो तुमने अभी मैम बात जब हम मतलब हाई एल्टीट्यूड या मतलब पे जा रहे हैं तो मतलब ऑक्सीजन का जो मसला वगैरह होता है, तो मतलब वो मसला पूछ रही हो, वो बता दोगे सही तो फिर बात खत्म हो जाएगी. किस चीज में मसला हो रहा है ऑक्सीजन में? मैम उस चीज को हमने आज के लेक्चर से को रिलेट करना है. ये थोड़ा क्लियर नहीं है मैम. अब इस कम है कंसंट्रेशन, और दूसरा ऑक्सीजन का उस कंसंट्रेशन कम होने की वजह से दूसरा क्या चीज उसकी कम हो रही है? पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर पे हमने फोकस करना है, तो ये चीज हमने पकड़नी थी. अब ये जो हमारे पास प्लेटो फेज था, ठीक है, पी यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज द स्टीप पोर्शन. अब यहाँ पे हमने जो प्लेटो पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम इसकी रेंज ले रहे थे बिटवीन 60 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले रहे थे. स्टीप में हम लेते हैं 0 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में.
अब हमारे पास सेफ्टी मार्जिन जो हम बात कर रहे हैं कि अप टू 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी व्हेन वी सेड के भाई यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर शो कर रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस है, यहाँ पे जो है हमारी सैचुरेशन शो कर रहा है, मतलब कि हाउ मच ऑक्सीजन विल बी बाउंड टू दी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ये पोर्शन हमें शो कर रहा है। अब जो प्लेटो फेज है वो सेफ्टी मार्जिन जो हमें दे रहा है एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे मुबीन ने कहा, बाकी सबने तुम लोगों ने हमें पॉइंट्स पे बताया, लेकिन फोकस ये करना है कि पार्शियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है इन प्लेटो फेज, व्हाट इज हैपनिंग के ड्रास्टिक चेंज, मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज आ रही है अगर इसमें पार्शियल प्रेशर में, ठीक है, स्टिल वी हैव मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल कि अगर हम 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टिल वी हैव 90% ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कि 90% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद हीमोग्लोबिन, सही है। तो 60 तक भी ये ड्रास्टिक चेंज आ गई कि 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ड्रॉप हो गया इसमें, तो still at 60 millimeter of mercury we have 90% saturation of hemoglobin, सही है। स्टीप पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ये चीज हो रही है कि यहाँ पे मिनिमम चेंज इन दी पार्शियल प्रेशर will lead to drastic change in the hemoglobin saturation, ठीक है, उल्टा होना है कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे drastic change in the partial pressure was leading to minimal change in the hemoglobin saturation, यहाँ पे उल्टा हो गया क्या कि यहाँ पे भले 60 से अगर हम 70 पे भी आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये सिस्टम है। दूसरा ये पॉइंट के प्लेटो फेज में इट इज डिनोटिंग के ऑक्सीजन एफिनिटी हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में है, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई भले ऑक्सीजन बाहर जा रही है, स्टिल इट इज एबल टू लोड ऑक्सीजन ऑन इनटू सेल्फ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है अब, क्योंकि ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होती जा रही है, तो अब हीमोग्लोबिन को डर है कि भाई पहले ही ऑक्सीजन कम है, बाहर भी नहीं है सराउंडिंग्स में, कहीं मेरे पास भी ना कम हो जाए, तो इसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी के साथ टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तो ये दोनों चीजें हैं, सेफ्टी मार्जिन है। तो अब इस सेफ्टी मार्जिन को रखते हुए कि भाई अब हम कह रहे हैं कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के लिए ऑक्सीजन ज्यादा मेन स्टिमुलेटर है और सेंट्रल के लिए भी नहीं थी, उसके लिए भी पावर स्टिमुलेटर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब व्हाट हैपेंस दैट पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स they won't work until our partial pressure of oxygen is reducing below the 60 millimeter of mercury, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, इफ इट इज गोइंग बिलो द 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम नीचा हो रहा है, तब ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दे विल रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग। अदरवाइज अप टू 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर हमारा रह रहा है 60 to 100 के बीच में है, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें पता है कि 60 पर भी स्टिल इट इज 90% सैचुरेटेड। तो इस वजह से ये अभी अब रिमेंबर दिस थिंग के कीमो रिसेप्टर्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन और द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैसेस का जो एक्चुअल कंटेंट है उसको नहीं देख रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं कि उनका पार्शियल प्रेशर कितना है। भले अगर पार्शियल प्रेशर सपोज सही भी उनको मिल रहा है यहाँ पे, वो ये नहीं देख रहे कि उसमें ऑक्सीजन कितनी ज्यादा कम हो गई है, उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, वो फिर होता है, ये सिर्फ पार्शियल प्रेशर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इफ द पार्शियल प्रेशर इज गोइंग बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, then our peripheral chemoreceptors will get stimulated and they will send signals to the medulla oblongata to increase the hyperventilation rate, hyperventilate करवाएगा उस बंदे को, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन का ही हो रहा है। इसी सेफ्टी मार्जिन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो भी तब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जब तक कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस सैचुरेशन को हमने माइंड में रखना है कि भाई 60 पे भी स्टिल वी हैव 90% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, सही है। अब ये जो है दे आर स्टिमुलेटेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन एज वेल, ठीक है, बट ज्यादा इनका रोल जो था पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का इन दी
सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, वो उनको ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। दिस कंपैरिजन चार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द Sherwood, you can see over there. Now we have to see the influence of these chemicals जो कि partial pressure of carbon dioxide है, oxygen है, and hydrogen ion concentration है, on the respiration. Now we have to compare what would be their effect on the peripheral chemoreceptors and on the central chemoreceptors. तो अब partial pressure of oxygen in the arterial blood हम बात कर रहे हैं, peripheral blood जो हमारे पास हो रहा है, it will अब उसका peripheral chemoreceptors पे जो अभी हमने discuss किया कि it will be stimulated only when the partial pressure has fallen to the point of being life threatening, जो कि कितना हो रहा है, less than 60 millimeter of mercury. This is an emergency situation. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल ऑनगोइंग पैटर्न है ब्रीदिंग का डेली बेसिस पे, ठीक है, तो उसमें जो है ये इसको नहीं अफेक्ट कर रहा है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है इस चीज को, ठीक है, कि जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सर्टेन डिसऑर्डर्स इट इज गोइंग बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, देन दीज peripheral chemoreceptors will be stimulated by the decreased partial pressure of oxygen. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात, what would be their effect on the central chemoreceptors? Partial pressure of oxygen जो है it directly depresses the central chemoreceptors, ठीक है, and the respiratory center itself when the pressure is going below 60 millimeter of mercury. ठीक है, again up to 60 millimeter of mercury क्यों नहीं respond कर रहे थे central chemoreceptors? क्योंकि partial pressure of oxygen अगर 60 millimeter बार भी था तो वी नो के हाउ मच ऑक्सीजन सैचुरेशन इज देयर, 90% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन, ठीक है, तभी कोई मसला नहीं हो रहा था। लेकिन उससे बिलो अगर पार्शियल प्रेशर जा रहा है, मींस पार्शियल प्रेशर इज गोइंग बिलो दिस लेवल, देन द ऑक्सीजन विल डायरेक्टली डिप्रेसेस द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। उसमें फिर रिस्पॉन्स बॉडी का क्या आएगा, हाइपर वेंटिलेट करना चाहिए बंदे को, ठीक है। इसी तरह अब इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइपर कैप्निया जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये आर्टेरियल ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इट वीकली स्टिमुलेट्स द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट दे विल स्ट्रांगली स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट कंट्रोलर ऑफ द वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम, ठीक है। तो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, this is the potent stimulator of the central chemoreceptors, especially by generating hydrogen ion, ठीक है, जो हमने बात की कि partial carbon dioxide generated hydrogen ion in the CSF will strongly stimulate the सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे पॉइंट कि इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप टू 60 to 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो वो इसको स्टिमुलेट करता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को, बट इफ इट्स पार्शियल प्रेशर इज गोइंग बियॉन्ड 70 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, देन इट विल आल्सो डिप्रेसेस द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अब यहाँ पे अगर क्या नुकसान होता है कि अगर हम इसको वेंटिलेशन ड्राइव नहीं दे रहे, ठीक है, स्टिमुलेट नहीं कर रहे अपने रिसेप्टर्स को या ब्रेन सेंटर को, मेडुला में जो प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि पर्सन विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन एंड इवेंचुअली डाई बिकॉज ऑफ द डेप्रिवेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अंडर दीज कंडीशंस इन दिस हाइपरकैप्निया वी हैव टू केयरफुली एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन टू गिव द हाइपोक्सिक ड्राइव, ठीक है। हाइपोक्सिक ड्राइव हमने उसमें प्रोड्यूस करनी है कि भाई ताकि क्या हमारे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स उसमें स्टिमुलेट हो सकें, क्योंकि अभी इसने इसको डिप्रेस कर दिया है, तो ये चीजें उसमें हमने देखनी है। देन नाउ दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन दी आर्टेरियल ब्लड। अब ये पॉइंट तुम लोगों ने माइंड में रखना है कि ये वाला जो हाइड्रोजन आयन हमने पढ़ा, ये हम कह रहे थे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द ECF, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है वो इसको स्ट्रांगली स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन जो आर्टेरियल ब्लड में है हाइड्रोजन आयन, it will not directly affect the central chemoreceptors. क्यों नहीं कर रहा हाइड्रोजन आयन? Because we know hydrogen ion cannot penetrate the blood-brain barrier. It can only cross the blood-brain barrier in the form of carbon dioxide. सही है? So the in the arterial blood,
whatever the concentration of hydrogen ion is, it will stimulate the peripheral chemoreceptors, but it has a very important role in the acid base balance. ठीक है, acid base regulation of the respiratory system जो होगी उसमें इसका ज्यादा रोल होगा as compared to controlling the hyperventilation या hypoventilated rates. ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं. यू हैव टू रिमेंबर स्पेशली दिस पॉइंट कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना कम होगा जिसमें हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो सकते हैं या सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन स्टिमुलेट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली द हाइड्रोजन आयन that has been derived from the carbon dioxide. ठीक है, so this is the role of the chemical or the chemoreceptor control of the breathing. अब इसमें हम इस तरह देख सकते हैं कि डिक्रीज वेंटिलेशन, ये तुम लोग एक्सपेरिमेंटली भी इस तरह कर सकते हो कि अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज सांस रोकने की कोशिश करें, वी कैन नॉट डू दैट. ठीक है, 1 सेकंड में या 2 सेकंड में हमारी ब्रीदिंग दोबारा रिज्यूम हो जाती है. उसका रीजन क्या है कि उसमें हमारे पास ये रीजन होता है कि इफ यू स्टॉप ब्रीदिंग फॉर अ व्हाइल, what happens, it will immediately increase the partial pressure of carbon dioxide. ठीक है, अब partial pressure of carbon dioxide बढ़ेगा, blood pH decrease होगी, हाइड्रोजन आयन concentration बढ़ रही है, तो वो immediately chemoreceptors को in the peripheral as well as the central chemoreceptors को जो है वो stimulate करेगा. ठीक है, ये stimulate होके फिर they will send signals via sensory neuron to the respiratory center in the medulla oblongata. In turn, what it does कि it will stimulate the or send signals to the spinal cord motor neurons. ठीक है, उनको ये stimulate करेगा. अब ये इतनी strong stimulation होगी कि it will overdrive our involuntary stoppage of the ventilation या respiration. उसको stop करके ये उसको resume कर देगी breathing को. respiratory muscles हमारे stimulate होंगे, वेंटिलेशन विल बी इंक्रीज. इसका फिर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट क्या है, वेंटिलेशन जैसे ही हमारे इंक्रीज होगी अंटिल आवर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर रीचेस बैक टू इट्स नॉर्मल पॉइंट. ठीक है, तब तक हम हाइपर वेंटिलेट करते रहेंगे. जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल रीच बैक टू इट्स नॉर्मल पॉइंट. ठीक है, तो it will then the respiratory rate will be resumed to normal rate. अच्छा, partial pressure of carbon dioxide कितना होता है, anyone? 40 to 46. 40 to 46 रेंज जो है हम इस तरह लेते हैं. 46 भी सही है, 35 to 45 millimeter of मरकरी. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सही है, और जो है पीएच नॉर्मल कितनी होती है हमारी, 7.3. इसको इस तरह याद कर लो, ये 7 है, 7.35, 7.45. ठीक है, ये हमारी पीएच हो गई. अब इस पीएच का अभी 7 पॉइंट हटा दोगे तो ये 35 to 45 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बन जाता है. सही है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नॉर्मल हमारा 104. वो नहीं, इतना नहीं करो. ठीक है, 96 to 98% हम ये नॉर्मल इसको ले रहे हैं. ठीक है, इतना ले रहे हैं इसमें तो ये है. ठीक है, तो ये नॉर्मल है. अभी फिर रेगुलेशन पे भी जब हम आएंगे तो इसमें तुम लोगों को ये नॉर्मल वैल्यूज पता हो कि भाई इनका पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज केमिकल्स आर कंट्रोलिंग दी ब्रीदिंग. अब जो है आज के असाइनमेंट की बात, ठीक है, इट वुड बी अवेलेबल अराउंड 3:15 इंशाल्लाह. ठीक है, तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव ये ग्रुप्स के जो CRs हैं दे शुड रिमेन अलर्ट. ठीक है, खुद भी अलर्ट रहें और दूसरों को भी अलर्ट करें कि अराउंड 3:15 you have to attempt this assignment and it would be good if everyone attempt this assignment क्योंकि ये तुम लोग इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है. ठीक है, और इसका वही मोड ऑफ है असेसमेंट यही है जो मैं ट्रू फॉल्स और जो मिसिंग वर्ड्स का देती हूँ वही पैटर्न होगा. और ये मेडल्स हैं फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन के लिए. ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. फ्रॉम टुडेज लेक्चर. अब सेकंड लेक्चर में जो है वो फिर सर नवेद तुम लोगों के साथ न्यूरल रेगुलेशन इसकी डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
तो ऑलमोस्ट जो भी तुम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सारे जो भी टॉपिक्स अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। स्पेशली अभी जो आगे भी आएंगे हाइपोक्सिया के बारे में तुम लोग पढ़ोगे, तो वो तुम लोगों को पता हो, उसकी टाइप्स वगैरह जो भी चीजें डिस्कस होगी, तो यू शुड नो अबाउट दैट। कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, देन आई शुड स्टॉप द मीटिंग।